یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں میری طرف سے آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ آئیے ہم خدا کے زندہ کلام کو کھولیں۔ میرے ساتھ یساع کی کتاب 43واں باب نکالیے، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یساع نبی کا صحیفہ 43واں باب 18ویں اور 19ویں آیت آج جو خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ آئیے ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یعنی خداوند فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ میں پورے ایک ہفتے سے دعا کر رہا تھا اور خدا سے کلام مانگ رہا تھا، کیونکہ جب بھی نیا سال چڑھتا ہے تو میں پورے سال کے لیے آپ کے لیے روحانی خوراک مانگتا ہوں۔ صرف جسمانی خوراک نہیں، مجھے آپ کی روحانی خوراک کی فکر ہوتی ہے۔ جسمانی خوراک کے لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو روزگار مہیا کرے، لیکن زیادہ فکر مجھے آپ کی روحانی خوراک کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، آپ جانور رکھتے ہیں اور چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ یعنی ہر چرواہے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بھیڑیں جو ہیں وہ صحت مند نظر آئیں، صاف پانی پئیں اور ہری ہری چراگاہ جو ہے وہ کھائیں تاکہ وہ صحت مند نظر آئیں۔ ہاللیلویا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے یہ سب سے مشکل کام ہے خدمت کرنا۔ باقی سارے کام لوگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کام اسی لیے مشکل ہے، ہر سنڈے نیا کلام سنانا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیں، آپ کو بڑا مشکل لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں پورا ہفتہ دعا کرتا رہتا ہوں جب میں نے کلام سنانا ہوتا ہے، اور کل رات خدا نے یہ کلام مجھے دیا، ٹھیک ہے؟ اور یقین جانے کہ میں سب سے پہلے یہ کلام میرے لیے ہے، اس کے بعد یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ یہ دو طریقے تلوار ہے نا، سنانے والے کو بھی کاٹتی ہے، سننے والوں کو بھی کاٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی زبردست آج کا کلام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اور میں نے یہ سرچ کی ہے، سیکھا ہے، ہر روز میں نیٹ پر بھی سیکھتا ہوں، اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ وہ لوگ جو پریشان رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، وہ ماضی میں رہتے ہیں، اور جو خوش رہتے ہیں وہ حال میں رہتے ہیں، اور جو فکر مند ہے اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں، جو فکر مند ہے وہ مستقبل میں رہتے ہیں۔ آج آپ نے کلام سننے کے بعد یہ غور ضرور کرنا ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ ماضی میں رہیں گے آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے، ماضی کے واقعات کو سوچ سوچ کر، فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ فراڈ کیا، فلاں نے میرے ساتھ فریب کیا، فلاں نے میری بےزتی کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہر شخص ماضی میں زیادہ تر رہتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، میں کل رات کا غور کر رہا ہوں، آپ جتنا مرضی اپنے دماغ کو کنٹرول کریں، آپ آٹومیٹیکلی ماضی میں چلے جائیں گے۔ میں غور کر رہا تھا کہ جب مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ پرانی باتیں کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ پرانی باتیں، کبھی ہم مستقبل کے تعلق سے باتیں نہیں کرتے، کبھی ہم حال کے تعلق سے باتیں نہیں کرتے، کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اسی پر قناعت کریں، اسی پر گزارا کریں اور اسی میں خوش رہیں۔ خدا باقی بھی آپ کو سب کچھ مہیا کرے گا۔ کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ ہم زیادہ تر پرانی باتیں کرتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟
18वीं आयत में लिखा है यानी खुदावंद यूं फरमाता है। कौन फरमाता है? कई दफा हम खातमों को कोसते रहते हैं, पारी साहब ने ये क्या दिया। पारी साहब कौन होता है? अपने पास से बात करने वाला, वो देखो मैसेंजर है। पौलुस कहता है वो बात जो मुझे खुदावंद से पहुंची वो मैंने तुम तक भी पहुंचा दी। और ये वफादारी है खुदा के साथ और उसके कलाम के साथ, कि जो बात खुदा का कलाम कहता है ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ दूसरों तक पहुंचा दी जाए। लिखा है खुदावंद यूं फरमाता है, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक खुदा ही फरमाता है। खादम सिर्फ कहने वाले हैं। खुदावंद यूं फरमाता है पिछली बातों को याद ना करो, पिछले साल की बातों को याद ना करो, या पिछले सालों की बातों को याद ना करो। समझ आ रही? मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा क्या नुकसान हुआ था। मैं जानता हूं कि पिछले सालों में कोरोना की वजह से, मुख्तलिफ हादसात की वजह से बहुत से लोगों के अजीज चले गए हैं, बहुत से लोगों के जानवर मर गए हैं, बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हमने पिछली बातों को याद नहीं करना, बल्कि यूं की तरह ये कहना खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने ही दिया था, तूने ले लिया, तू और देगा, तेरा शुक्र हो। आमीन। और ऐसा है जब हम हर हाल में खुश रहते हैं, क्योंकि हम फिक्र करके कर कुछ नहीं सकते। देखा ना कलाम में, ना आप अपने बालों को सफेद कर सकते हैं, ना काला कर सकते हैं, ना कद को बड़ा कर सकते हैं, ना छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ना कोई एक घड़ी बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं, या शुगर हाई या लो हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, अटैक हो सकता है, बीमारियां बढ़ सकती हैं परेशान होने से, दुखी होने से। इसलिए कलाम कहता है जो कुछ तेरे पास है उसी पर कनात कर, उसी पर गुजारा कर, हर एक बात में खुदा का शुक्र अदा कर। तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ था, लेकिन एक नया साल उनकी जिंदगी में नहीं आया। बहुत कुछ था लेकिन वो सब कुछ छोड़कर चले गए। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसने हमें एक नया साल दिया है, और नए साल का आज ये 15वां दिन उसने हमारी जिंदगी में दिया है। प्रेज़ गॉड। इसलिए वो क्या कहता है, पुरानी पिछली बातों को याद ना करो, क्योंकि जब भी आप पिछली बातें याद करेंगे आप दुखी होंगे। तजर्बा है कि नहीं आपका? ओ फलां ने जी बड़े बाजार में मेरी बेइज्जती कर दी, ये होगा, मैं भी आप में शामिल हूं। जब भी आप गुजरा वक्त याद करेंगे आप परेशान होंगे, आप दुखी होंगे। इसलिए खुदा आपको दुखी देखना नहीं चाहता। खुदा कहता है कि खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। इसलिए आज खुदा ने मेरे साथ और आपके साथ ये कलाम किया है कि आप पिछली बातों को याद ना करें, बल्कि किसको याद करें? ए जवान, तो अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। फिलहाल में सिर्फ खालिक को याद कर, कलाम को याद कर। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, खुदा को याद करें, खुदा की तारीफ करें, खुदा की हम करें, और खुदा के कलाम को दिन रात पढ़ें और इस पर गौर करें। जो कुछ हुआ है उसको छोड़ दे पीछे, वो वापस नहीं आएगा। क्या वक्त फिर आता नहीं, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं। वो वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा अपनी जिंदगी में। वो घाटे, वो नुकसानात वो वापस नहीं आएंगे। सिर्फ अब आपने हाल में रहना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, और जिस भी हाल में खुदा ने आपको रखा है उसी में आपने खुश रहना है। पिछली बातों को याद ना करो। देखो पुरानी चीजें जाती रही, बस अब क्या होगी? नहीं होगी। तो इसलिए पिछली बातों को याद ना करें, और कदीम यानी पुरानी बातों पर सोचते ना रहो। दिमाग सोचता रहता है, दिमाग काम ये करता है, दिमाग का काम ही सोचना है। चाहे वो माजी के बारे में सोचे, चाहे वो हाल के बारे में सोचे, चाहे वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे, दिमाग काम करता रहता है। आप रात को सोए होते हैं फिर भी दिमाग काम कर रहा था। जो आपको ख्वाबें आ रही होती है, ये दिमाग काम कर रहा था। आपकी रूह जाग रही होती है, आप सो रहे होते हैं। ऐसे है ना? तो इसलिए कलाम हमें कहता है कदीम बातों पर सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूंगा। इस नए साल में खुदा पर उम्मीद रखें, ईमान रखें कि खुदा इस नए साल में वो नया काम करेगा जो उसने पिछले सालों में नहीं किया।
कभी आपने इरादा ना किया होगा, कभी आपने प्लान ना किया होगा, कभी आपके वहम और गमान में ना होगा, वो काम इस नए साल में खुदा आपके लिए और मेरे लिए करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शुक्रगुजारी सिर्फ करें। एक नया काम, अनोखा, एक जलाली काम, एक अलग अलग काम वो आपकी जिंदगी में करने वाला है। प्रेज़ गॉड। वो किसी ने गीत भी लिखा है, मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। नई खुशियां जो आपको मिलने वाली है या मिल चुकी है, वो खुदावंद की तरफ से एक नया काम है जो पहले कभी नहीं हुआ आपकी जिंदगी में। जब खुदा की तरफ से कोई काम होता है तो फिर हमें खुशी और शादमानी होती है। हालेलुया। नया काम खुदा आपके लिए करने वाला है। कोई नया दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है। अगर एक दरवाजा बंद हो गया है तो कोई नया दरवाजा खुदा आपके लिए खोलने वाला है। अगर आप पिछले साल में हार चुके हैं, इस साल में आपकी जीत होने वाली है। अगर आप पिछले सालों में गिरते रहे हैं, इस साल में खुदा आपको अपना जोर देकर आपको उठाना चाहता है। अगर पिछले साल में आपकी दुआएं नहीं सुनी गई, इस साल में खुदा आपकी दुआओं का जवाब देकर आपके लिए एक अनोखा काम करने वाला है। क्या आप ईमान रखते हैं? मैं ईमान रखता हूं कि खुदा एक नया काम करेगा। और आप दुआ भी किया करें, खुदा मुझे एक नया काम कर, एक नया काम कर। क्योंकि लिखा मैं सब कुछ नया बना दूंगा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, ज़ाहिर होगा, नजर आएगा आपको, आपकी जिंदगी में या होने वाला है। आपको शायद उसके बारे में इल्म नहीं, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में एक नया काम करने वाला है। प्रेज़ गॉड। इसलिए पुराना सब कुछ खत्म करें। और जैसे हमने पिछले संडे भी कलाम सुना था, नई इंसानियत को पहन लो, नई पैदाइश के तौर से भी हमने नए साल वाले दिन कलाम सुना था। सिर्फ हमारा काम यह है कि हम नए रहे। नए कपड़े खुदा ने हमें दिए हैं। मैं रूहानी कपड़ों की बात कर रहा हूं। निजात का लिबास उसने हमें दिया है, रास्तबाजी का लिबास उसने हमें दिया है। अब आपने अपने कपड़ों को पुराना नहीं करना। मैंने एक दिन कहा था ना, शादी पुरानी नहीं होती, हम उसको पुरानी कर देते हैं, पुरानी कपड़े पहन कर। मैं आपको रूहानी तौर पर भी ये बात बताने वाला हूं। जब आपने मसीह को कबूल कर लिया है, आप अपने आप को हर रोज नया समझे। हालेलुया। पुराने ना समझे, पुरानी जिंदगी में ना जाए। कलाम में लिखा हुआ है, जैसे कुत्ता अपनी कैद की तरफ और बंधाई हुई सूंडी दोबारा दलदल में वापस जाती है, अगर वैसे ही कोई शख्स नया बनकर पुरानी जिंदगी में चले जाता है, वो बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए पुरानी बातों की तरफ सोचना नहीं है, पुरानी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचना। याद रखें, इब्लीस जो है वो हमारे जहन पर अटैक करता है। आपको पता, इब्लीस हमारे जहन पर अटैक करता है और वो हमेशा हमें पुरानी जिंदगी याद दिलाता है। पुरानी जिंदगी जो ऐशो इशरत वाली जिंदगी थी, ठीक है ना, जिसमें आप जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक चलते थे, वो आपको पुरानी जिंदगी याद दिलाएगा। पुराने ख्वाब, बुरे बुरे ख्वाब आपको आपके जहन में वो डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने उनको घोंसला नहीं बनाने देना। सही है? आपने उन पर गालिब आना है, फतह पानी है। लेकिन अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। बियाबान जिसमें आपको ना कुछ खाने को मिलता है, ना कुछ पीने को मिलता है। आपको पता है, बनी इसराइल कौम बियाबान में 40 साल तक सफर करते रहे हैं, ऐसे है ना। बियाबान, हर तरफ आपको जमीन वीरान और सुनसान नजर आएगी। ना उम्मीदी है, अंधेरा है या तारीकी है या कुछ आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे है, कभी आप ऐसी जगह पर जाकर देखें, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, मैं कहां आ गया हूं। जहां पर जमीन बंजर पड़ी हो, वीरान पड़ी हो, आप कभी वहां पर जाएं, आपको कैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन खुदा उसमें से भी आपके लिए राह पैदा करेगा, क्योंकि वो नामुमकिन में से मुमकिन पैदा करता है। वो नामुमकिनात का खुदा है। वो पत्थरों में से अब्राहम की औलाद पैदा कर सकता है, जहां नहीं भी करता वहां से भी इकट्ठा कर लेता है। उसने बियाबान में मन बरसाया कि नहीं बरसाया? उसने पानी दिया कि नहीं? चट्टान में से पानी फूट निकला।
वो आपके लिए भी करेगा, लेकिन बशर्ते कि आप वफादार रहें। एलिया का खुदा कहा करे मेरा खुदा है, एलिया का खुदा मेरा खुदा है, जो गांव में भी रोटी और बोटी पहुंचा रहा है। वो भी एक बियाबान है जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ वो मौत मांग रहा है, मैं मरना चाहता हूं। आज हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग दुखी परेशान हो और वो कहें कि मैं मरना चाहता हूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, लेकिन खुदा आज आपको कह रहा है मैं एक नया काम करूंगा। आप अपने बारे में कहें खुदा मेरे लिए एक नया काम करे, खुदा सहरा में से मेरे लिए रास्ता बनाएगा, बियाबान में से खुदा मेरे लिए रास्ता बनाएगा, खुदा पाकिस्तान में से मेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। पिछले हफ्ते यहां पर एक टीम आई जिनके पास कुछ गोरे थे, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मुझे 25 सालों के मसीह को कबूल किया हुए आज तक मेरा किसी गोरे काले के साथ राब्ता नहीं, एक ही गोरा रखा हुआ है जो सब कुछ मुहैया करता है। वो बड़े हैरान हुए यहां पर आकर यह सब कुछ देखकर। मैंने कहा मेरा ईमान उस पर है, मैंने अपनी आंखें इधर उधर नहीं लगाई, वो मुहैया करता है, मेरा ईमान है। मैं 33 साल को दुबई समझता हूं, ये मेरे लिए दुबई है, क्योंकि खुदा यहां पर मुहैया करता। लोग कहते हैं नहीं बाहर जाएंगे तो खुदा मुहैया करेगा, मैं कहता हूं खुदा यहां पर ही मुहैया करता है और करेगा। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग दुखी होंगे, मेरा वीजा क्यों नहीं आ रहा, मेरी टिकट क्यों नहीं आ रही। आप ईमान रखें खुदा यहां पर आपके लिए मुहैया कर सकता है। हो सकता खुदा की मर्जी ना हो कि आप जाएं बाहर, इसलिए ऐसा ईमान खुदा पर रखें, खुदा आपके लिए मुहैया करेगा। हाँ मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा, सहरा में नदियां जारी करूंगा। और आप जानते हैं मसीह ने क्या कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा जैसा कलाम मुकद्दस में है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। सिर्फ जिंदगी के पानी की नदियां जारी नहीं, बल्कि हर किस्म की बरकत की नदियां जारी खुदा आपके लिए नए साल में करने वाला है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इबादत करनी है, चूंकि लिखा है कि तब तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और मैं तेरे पेट से बीमारियों को दूर कर दूंगा, तेरे मुल्क में किसी के शिकार ना होगा और ना ही कोई बात रहेगी। मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूं, जो इन दिनों में मैं विजिट बहुत कम करता हूं, कल मैंने थोड़ा सा विजिट किया। मैं इन दिनों की बात कर रहा हूं कि इन दिनों में मुझे मौका मिलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दुआ में ठहर सकूं, और इन दिनों में घर बैठे खुदा ने मुझे बड़े सारे पैसे मुहैया किए। कई बहनों के पैसे आए, वो मुझे आकर यहां पर देकर गए, भाई साहब हमने कहा था कि अगर खुदा हमें देगा तो हम आपको देंगे। यदि मेरा ईमान है कि मैं यहां पर बैठा रहूं, सिर्फ आपकी दुआ करता रहूं, तो खुदा मुझे यहां पर मुहैया करता है। ये सिर्फ मैं आपको पता लेने के लिए जाता हूं आपके घरों में कि आप ठीक ठाक हैं, कोई नई चर्च में आया बड़े दिन को या नए साल को, तो मैं आपका पता लेने के लिए जाता हूं, विजिट करने के लिए। मैं ना भी जाऊं, खुदा मुझे यहां पर मुहैया करता, मेरा ये ईमान है। हालेलुया। एक दफा मैंने 2 महीने लगातार रोजे में मैं ठहरा था और मुझे पता है कि खुदा ने मुझे यहां पर मुहैया किया था। प्रेज गॉड। आप भी ऐसा ईमान अपने अंदर पैदा करें कि खुदा आपको मुहैया करेगा। हालेलुया। मेरे साथ नामियात पढ़े इसी बात की। तमाम कौमें फराहम की जाएं और सब उम्मतें जमा हो, उनके दरमियान कौन है जो उससे बयान करे या हमको पिछली बातें बताए। वो अपने गवाहों को लाए ताकि वो सच्चे साबित हों और लोग सुने और कहें कि ये सच है। खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी जिससे मैंने बरगजीदा किया है, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। कौन तुम्हें पिछली बातें बताएगा? ये पिछली बातें पुराने नामे की बातें भी हो सकती हैं जी, इनको नहीं आपने भूलना। ये आपने अपनी जिंदगी के जो वाकयात हैं उनको भूलना है। समझ आ रही है? पिछली बातें बताने वाले बेशक नबी रसूल पैगंबर जा चुके हैं, लेकिन वो कहता है कि अभी भी मेरा एक बरगजीदा खादम तुम्हारे दरमियान में गवाह है जो तुम्हें पिछली बातें बताएगा। हालेलुया।
पुराने ऐलानों की बातें, या आज से 6000 साल पुरानी बातें, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक जो बाइबल में मौजूद है, तहरीर की गई हैं, वो बातें मेरा खादम जो है वो तुम्हें बताएगा। मेरे साथ एक और हवाला देखें नया नामे में से, 2 Corinthians 5वां बाब और उसकी 17 आयत। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है, किस में है? बस अब जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। गौर से सुनिएगा। बस अब की बात हो रही है भाई, फेल हाल की बात हो रही है, माजी की नहीं है, ना ही मुस्तकबिल की। बस अब जो मसीह में है वो क्या है? नया मखलूक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या है? नया मखलूक। वो नया मखलूक है, वो नए सिरे से पैदा शुदा है, निजात याफ्ता है, इसलिए वो नया बन चुका है। उसने पुरानी सोचे, पुराने ख्याल, पुराने इरादे, पुराने मंसूबे, पुराने काम, सब कुछ उसने खत्म कर दिया है। अब वो क्या बन गया है? नया बन गया है। मुझे यहां पर पौलुस याद आ गया है। पौलुस के ऊपर जब यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ, वो नया हो गया, वो बदल गया, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। पहले वो लोगों को कत्ल करने वाला था, फिर वो मसीह की खातर खुद कत्ल हो गया। एकदम 40 कोड़े उसने खाए हैं मसीह की खातर। और आखिरी मिशनरी सफर के दौरान उसकी गर्दन बदन से जुदा कर दी गई। ठीक है, यानी जो मसीह को कबूल करता है, मसीह उसकी जिंदगी को नया बना देता है। बस अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। और लिखा है आगे, देखो पुरानी चीजें, जो पुरानी चीजें गई हैं नहीं, देखो पुरानी चीजें जाती रही। सिगरेट नोशी गई कि नहीं? कई लोग अलावा देते हैं, भाई साहब फलाने बंदे तो बपतिस्मा में था, हले भी सिगरेट पीता, फलाने बपतिस्मा में था, हले भी शराब पीता। तो ये क्या है? पुरानी चीजें है ना। चूड़ी क्या है जो हम यहां पर रखते हैं? कहीं दिन मैंने करके मार के काट देना होता भाई सबका निगम लगा, मैं कहा मेरा बड़ा तजर्बा है। ये पुरानी चीजें है कि नहीं? बपतिस्मा लेने के बाद हम गालियां निकालते हैं, ये पुरानी चीजें है कि नहीं? बपतिस्मा लेने के बाद हम झूठ बोलते हैं, ये पुरानी चीजें है कि नहीं? हम फ्रेम भी देते हैं, हम और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्या पुरानी चीजें हैं हमारे अंदर के नहीं? यही सबब है कि खुदा हमें बरकत नहीं दे रहा, हमने खुद अपनी बरकतों को रोका हुआ है। और फिर हम कहते हैं कि हमने तो तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया है, और खुदा हमारी दुआ नहीं सुन रहा, हमारे हालात नहीं चेंज हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने पुरानी चीजें अभी कुछ रखी हुई है पास। मुझे यहां पर एक पहली बात आ गई है। याकूब की बीवी राहल, जिसके लिए उसने अपने ससुर की भेड़ों को चराया, उसको पाने के लिए, बड़ा प्यार था उससे और उसको पाने के लिए, लेकिन उसके अंदर क्या है? पुरानी चीजें। जब याकूब अपनी बीवियों को लेकर आ रहा था तो राहल ने अपने बाप के पुत्र चुरा लिए। है पुरानी इंसानियत उसके अंदर क्या नहीं? मरे खुदा तो काटे को थे खड़ा रहता, तू की करनी है? पुरानी चीजें, बाप की पुरानी चीजें। और सुने ध्यान से, ये अभी मुझे खुदा ने बताया है, ये मैं मैसेज में नहीं था, अभी खुदा ने मुझे बताया। कई दफा हम भी अपने बाप दादा की पुरानी चीजें, मसलन दिया जलाना जो मेरे हाथ वाले दिन, ठीक है, और बहुत सारी रस्मों रिवाज, ठीक है, पिछली पुरानी जो बाप दादा से लिखा ना कलाम में, जैसा कि मरकज की डील में लिखा है ना कि यूमत हो जो मेरी ताजीम करते हैं इनके दिल मुझसे दूर है, ये बेफायदा मेरी ताजीम करते हैं जो कि इनके दिल मुझसे दूर है, और ये अपनी रवायतों को कायम रखने के लिए मेरे हुक्मों को रद्द कर देते हैं। अपने बाप दादा की रस्मों को कायम रखने के लिए मेरे हुक्मों को रद्द कर देते हैं। बिल्कुल राहल की तरह। राहल अपने बाप के बुत चुरा कर ले रहा है, उसके अंदर पुरानी जिंदगी है, उसको चाहिए था वो नए मुल्क में जा रही है, किसी और मुल्क में शिफ्ट हो रही है, वो अपने बाप के बुत ना चुराती, क्योंकि वो बुत प्रस्ती करता था उसका बाप, और उसके अंदर भी बुत प्रस्ती थी, इसलिए वो अपने बाप के बुत चुरा कर ले आई। और उसका सबब क्या निकला? गौर से सुनिएगा। जब उसका बाप आया, उसने तलाशी की, याकूब ने कहा जिसके पास तेरे पुत्र निकले वो मर जाए। और पुत्र किसके पास है? राहल के पास।
राहत उस हालत में थी जो औरतों की होती है, और वो ऊंट पर बैठी हुई थी। उसने कहा, बाप तू तो जानता है मेरी वो हालत है जो औरतों की होती है, मैं उठ नहीं सकती। ते याकूब ने जी बदवा दी सी, उन्होंने नहीं पता कि जिदी खातर मैं मेहनत कर तो पाया उन्हें मेरे को खो जाना। याकूब की बदवा लग गई उसकी बीवी को, क्योंकि याकूब ने कहा था जिसके पास से तेरे पुत्र मिले वो जीता ना रहे, वो मर जाए। और राहत बिन्यामीन को पैदा करने के बाद मर गई। समझ आ रही कि नहीं? अगर वो भूत ना चुराती तो उसने मरना नहीं था। मरना तो था, बाद में भी मरना था, लेकिन फौरन नहीं मरना था, अपने बच्चों की खुशियां देखती वो। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन चूंकि याकूब ने बदवा दे दी इस वजह से, और दूसरी वजह यह थी कि वह अपने बाप के पुत्र चुराकर ले आई थी। इसलिए मेहरबानी करें, वो तारीकी का दौर था, अब रोशनी का दौर है। ठीक है, अब आपने अपने बाप दादा की रस्मों को छोड़ना है। लिखा है दुनिया की हम शक्ल, क्योंकि दुनिया की शक्ल बिगड़ती जाती है, अकल नहीं होने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। इसलिए यहां पर लिखा देखो पुरानी चीजें जाती रही, वो सब क्या हो गई? नई हो गई। हालेलुया। क्या हम सब में वो सब कुछ नया हो चुका है? जी हां, जो लोग कलाम पर अमल करते हैं वो मेहंदी ते डीजे नहीं चलाएंगे, जो नए हो चुके हैं। मैं सच आपको कह रहा हूं, वो कलाम के खिलाफ नहीं चलेंगे, वो अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं करेंगे, वो सिर्फ खुदा को खुश करेंगे। जो नए हो चुके हैं ते जेडे पुराने ने उन्होंने पुराने रहना। खुदा एक नया काम आपके लिए करने वाला है। आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मुकाशवा की किताब 21वां बाब मेरे साथ दिखा लें। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। प्रेज गॉड, एक नया काम। यीशु ने कहा था मैं एक नया काम करूंगा, मैं एक नया काम करूंगा, मैं सब कुछ नया बनाने वाला हूं। यहां पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। यहां पर अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स सब तबाह होने वाली हैं, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। यहां पर कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए यीशु एक नया काम करेगा मुस्तकबिल में हमारे लिए। लेकिन फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। किसके लिए? गौर से सुनिए जरा, शौहर के लिए सिंगार किया जाता है। जब लड़की की शादी होती है वो अपने शौहर के लिए तैयार होती है, लेकिन आज तो शादी से पहले ही हम बहुत कुछ करते हैं। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का क़यामा आदमियों के दरमियान में है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। एक नया काम। रात को तो शायद रोना पड़े, लेकिन सुबह खुशी की नौबत आएगी। जमीन पर तो शायद आपको रोना पड़े, लेकिन जब आप आसमान पर चले जाएंगे वो आपकी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा। हो सकता है गुजरे सालों में आपको रोना पड़ा, बड़े दुख उठाने पड़े, लेकिन इस नए साल में खुदा आपकी आंखों के आंसू पोंछने वाला है। इसलिए वो कहता मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहोराला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही, पहली चीजें जाती रही। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। हालेलुया। मैं सब कुछ नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। आसमान जमीन चल सकती है, लेकिन मेरे मुंह से निकली बातें हरगिज़ न टलेंगी। फिर उसने
मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा, जो गालिब आए वही इन सब चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। गौर से सुनिए जी, जो गालिब आएगा जमीन पर आएगा वो उन चीजों का, इसलिए तो लिखा है कि आज में बाला की चीजों की तलाश में रहो, दुनिया की चीजों की तलाश में ना रहो। और लिखा है मगर बुज़दिल लोग, यानी जो बुज़दिल लोग हैं, डरपोक लोग हैं और बेईमानों और गुनोने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत प्रस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है, इन लोगों के लिए दूसरी मौत है जो ये काम करते हैं। लेकिन आप जो नए मखलूक हैं, आप पर सजा का हुक्म नहीं है, बल्कि आप मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। हालेलुया। तो आज के बाद आपने अपने जहन पर कंट्रोल करना है। अगर शैतान आपके जहन को मुंसर करे, आपको पुरानी बातें याद दिलाए, तो आपने अपने सर पर हाथ रखना है और यीशु मसीह के नाम से आपने इब्लीस और उसकी गुप्तों को डांटना है। हालेलुया। कोशिश करनी कि आपने हाल में रहना है, ना आपने मुस्तकबिल में जाना है कि मेरा मुस्तकबिल, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ये है वो है। खुदावंद पर छोड़ दें, आपके सारे इरादे पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। आप कुछ नहीं कर सकते। लिखा है यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अंगूर का हकीकी दरख्त तो मैं हूं और तुम मेरी